تم نے کبھی بارش کی آواز میں چھپی سسکیاں سنی ہیں؟ رات کے آخری پہر گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے شخص نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی سے پوچھا، جو اپنی تھوڑی بازو پر ٹکائے برستی بارش کا منظر دیکھ رہی تھی۔ بارش کی سسکیاں؟ اف جہانگیر، تم کسی دن پاگل ہو جاؤ گے۔ یہ سب فلسفے صرف کہانیوں تک ہی محدود رکھا کرو، کیونکہ حقیقت میں بارش بہت خوبصورت چیز ہے۔ اس لیے فضول کی اداس باتیں کر کے میرا موڈ نہ خراب کرو۔ اس لڑکی نے برا مانتے اسے ٹوکا تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ یعنی تمہیں بھی میری باتیں فضول ہی لگتی ہیں؟ وہ زمانے کا مشہور ترین مصنف اپنی منگیتر سے روز اپنی کہانیوں کی بے وقتی سہنے کے بعد بھی ہنستا تھا، اور وہ اس کے الفاظ کو فضول سمجھنے سے کبھی باز نہ آتی تھی۔ ہاں، وہ ساری باتیں جو مجھے اداس کر دیں وہ فضول ہی ہیں۔ تم جانتے ہو نا کہ مجھے خوش رہنا پسند ہے، اور میں صرف وہی چیزیں پڑھتی ہوں جو مجھے خوش کریں۔ لیکن تمہیں تو اپنی ہر کہانی میں دکھ درد لکھنے کی عادت ہے، اس لیے مجھے تمہارے ناولز نہیں پسند۔ وہ مزے سے کہہ کر اپنی ہتھیلیوں کو جوڑ کر بارش کے قطرے سمیٹنے لگی، تو جہانگیر نے اسے محبت سے دیکھتے اپنی آنکھوں میں بسایا۔ بارش میں بھیگی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پر آتے بھیگے بال اور گالوں سے ٹپکتے پانی کے قطرے اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے، مگر سب سے زیادہ روشن تو اس کی آنکھیں تھیں، جن میں خوش رہنے کی چمک واضح تھی۔ اب تم ایسے ہی دیکھتے رہو گے تو مجھے دوبارہ محبت ہو جائے گی تم سے، وہ شرارتی انداز میں کہتے اسے دیکھنے لگی، تو جہانگیر مسکرا دیا۔ تو ہو جانے دو، ویسے بھی اس سال میں تمہیں ڈولی میں بٹھا کر لے جاؤں گا۔ جہانگیر نے بھی اسی انداز میں کہا تو وہ اٹھی اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ ڈولی کا زمانہ گیا مسٹر عاشق، میں تمہارے ساتھ پیدل واک کرتے ہوئے سسرال جاؤں گی۔ ڈولی میں بیٹھ کر میں اپنا مزہ خراب نہیں کر سکتی، وہ مستقبل کے حسین خواب سجاتے ہوئے بولی، تو جہانگیر بھی کھڑا ہوا۔ اب اتنے بھاری لہنگے میں تمہیں پیدل نہیں چلنے دے سکتا۔ ہاں، اگر تم کہو تو گود میں اٹھا کر لے جا سکتا ہوں۔ وہ شریر ہوتے اس کے قریب ہوا۔ زینب، اس کی جسارت پر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی، تو جہانگیر بھی اس کا نام پکارتے اس کے پیچھے آیا۔ چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں، وہ اس کی پرتپش نگاہوں سے بچنے کے لیے بولی، تو جہانگیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وقت دیکھ رہی ہو؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، اور اتنی تیز بارش میں کون سا آئس کریم پارلر کھلا ہوگا؟ جاؤ چپ چاپ جا کے سو جاؤ، اور مجھے بھی اپنے ناول کی آخری قسط لکھنے دو، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، تو زینب نے کمر پر ہاتھ باندھتے تیوری چڑھائی۔ مجھے ابھی کے ابھی آئس کریم کھانی ہے، اور بے شک بارش آئے یا طوفان مجھے فرق نہیں پڑتا، بس تم مجھے آئس کریم کھلانے لے کر چل رہے ہو۔ اس نے ضدی انداز میں دھونس جمائی، تو جہانگیر نے بے بسی سے کندھے اچکا دیے۔ خالہ کو پتہ چل گیا تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میری آواز کافی خراب ہے۔ خراب آواز کے ساتھ وائس اوور کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، لیکن کیونکہ میرا چینل گرو نہیں کر رہا، مونیٹائز بھی نہیں ہے، ویوز آپ لوگ میرے چینل پہ وزٹ کیجیے نہیں آ رہے، تو نہ ہی سبسکرائبر ہیں، آپ لوگ کلک کرتے ہیں ویڈیو کو، نہ پورا دیکھتے ہیں، نہ لائک کرتے ہیں، نہ ہی کوئی کمنٹ کرتے ہیں، سبسکرائب تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ویوز نہ رک جائیں، جو 15-20 آتے ہیں وہ بھی نہ رک جائیں، اس وجہ سے میں وائس اوور کر رہی ہوں اس آواز کے ساتھ بھی۔ میری سٹوریز کیا آپ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی؟ کیا میرا انداز بیاں آپ کو اچھا نہیں لگتا، یا میری آواز آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ کوئی بھی میری سٹوری نہیں سنتا، کوئی نہیں رکتا میری ناولز پر، پلیز ہیلپ کیجیے۔ آئی وانٹ ٹو گرو مائی چینل، پلیز ہیلپ می۔ ویسے بھی انہیں نہیں پتا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں، تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنسواؤ گی، وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ تم کتنے ڈرپوک ہو یار، لوگ تو محبت میں پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں، اور تم ایک آئس کریم نہیں کھلا سکتے، وہ ناراضگی سے بولی، تو جہانگیر نے گہرا سانس لیا۔ مرد کو خود سے منسلک عورت کے لیے ڈرپوک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ خطرے میں عورت کی عزت ہے، لیکن تم یہ بات نہیں سمجھو گی، کیونکہ تمہارا ذہن بچوں والا ہے، اس لیے جاؤ اور کپڑے بدل کر سو جاؤ، میں بھی گھر جا رہا ہوں، اس نے نرمی سے سمجھایا، تو زینب غصے سے سینے پر ہاتھ باندھتے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ نہیں جاؤں گی اور نہ تمہیں جانے دوں گی، مجھے آئس کریم کھانی ہے، اور یہ بھاری بھاری باتیں میرے ساتھ مت کیا کرو۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری اتنی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو میں یہ منگنی ہی توڑ دیتی ہوں، یہ لو اپنی رنگ۔ اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالتے وہیں فرش پر پھینکی، تو جہانگیر نے دکھ سے اسے دیکھا، پھر جھک کر انگوٹھی اٹھائی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آج یہ بات کی ہے، آئندہ نہ کرنا، تم جانتی ہو نا کہ تم میں میری جان بستی ہے، اور اس پوری دنیا میں تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، پھر کیوں بات بات پر منگنی توڑنے کی باتیں کرتی ہو؟ تمہیں میرے دل کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے؟ وہ زینب پر غصہ نہیں کیا کرتا تھا، چاہے وہ اسے جان سے بھی مار دیتی، تب بھی وہ اس کے سامنے آواز بلند نہ کر پاتا، کیونکہ تم میری بات نہیں مانتے، اور میرا بھی امی اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے زیادہ جذباتی نہ ہو اور یہ پہناؤ مجھے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر زینب نے خود ہی اپنا ہاتھ آگے کیا، تو جہانگیر مسکرا دیا۔ چلو آئس کریم کھلا کر پہناؤں گا۔ وہ اس بار زینب کی چھوٹی سی خواہش رد کرنے کے بجائے اس کا بازو پکڑ کر گھر سے باہر نکل گیا، جہاں بارش کے برسنے میں مزید تیزی آ گئی تھی، یعنی وہ لڑکی اس بیکار رائٹر کے ساتھ باہر نکلی ہوئی ہے۔ ویری نائس، بس یہی وقت ہے جہانگیر کو گولی مارنے کا، اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے فائرنگ کی، اور وہ بے وقوف سی لڑکی بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔
तुम अपने काम पर ध्यान दो और काम खत्म होने के बाद मुझे फ़ोन करना। बरसती बारिश की खूबसूरती में एक बदसूरत आवाज़ फ़ोन पर गूंज रही थी, जबकि उसे सुनने वाले ने चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट सजाए जहांगीर और ज़ैनब का ताक़ुब करना शुरू किया। तुम्हारी ज़िद्दों ने किसी दिन हमें बहुत नुकसान करवाना है। नरमी से ज़ैनब का हाथ थामे वो बोला तो ज़ैनब हँसने लगी। अगर हम साथ हैं तो कोई नुकसान हमें परेशान नहीं कर सकता। इसलिए मुझे डराना बंद करो। वो हर बात को नाक से मक्खी की तरह उड़ा देने वालों में से थी। इस वक्त वैसे भी कुछ नहीं खुला होगा। अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो आइसक्रीम की जगह जूते ही पड़ेंगे। इर्द-गिर्द देखते जहांगीर ने उसे जानबूझकर डराया। हाय अल्लाह! तो क्या हमें पूरी रात लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी? वो वाक़ई खौफज़दा हुई थी। हाँ, और सुबह का नाश्ता भी नहीं मिलेगा और खाला से जो मार पड़ेगी वो अलग। जहांगीर ने आँखों में शरारत लिए उसकी मासूमियत देखी। खैर है मैं मार खा लूँगी। तेज़ चलो तुम, इतने आराम से किस खुशी में चल रहे हो? वो तकरीबन भागते हुए उसे भी साथ भगाने लगी तो पीछे चलते आदमी ने अपनी गन का निशाना बनाते ट्रिगर पर हाथ रखा। उफ ज़ैनब तुम्हारा ये बचपना कब खत्म होगा? ऊँची आवाज़ में बोलते हुए ज़ैनब के साथ तेज़ भागने लगा। जब एक गोली बारिश के कतरों को चीरती जहांगीर के बाजू को छूकर गुज़री। वो जो उसके लिए तैयार न था, एक चीख मारते अपने बाजू को देखने लगा जहाँ से खून की आबशार बहने लगी थी। ज़ैनब ने भी इस आफत पर रुककर परेशानी से जहांगीर को देखा, जो अपने दर्द पर काबू पाते मोबाइल की टॉर्च से पीछे गोली चलाने वाले को तलाश कर रहा था, मगर वो आदमी गली से मुड़ते अंधेरे में खो गया था। अल्लाह! जहांगीर तुम ठीक तो हो? इतना खून निकल रहा है, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ज़ैनब ने उसका बाजू पकड़ते रोहन सी आवाज़ में कहा तो जहांगीर ने अपने बाजू को देखा जहाँ ज़ख्म गहरा था। परेशान ना हो, मैं तुम्हें पहले घर छोड़ दूँ, फिर हॉस्पिटल जाऊँगा और पता नहीं किसने गोली चलाई है। कौन दुश्मन पैदा हो गया है मेरा? बेचैनी से दोबारा अंधेरे में फ्लैश लाइट की रोशनी करते उसने कुछ तलाश करने की कोशिश की। नहीं प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाओ, तुम्हें इतना दर्द हो रहा है जहांगीर ये मेरा दुपट्टा इस पर बाँध लो और हॉस्पिटल कितना दूर है? काश हम गाड़ी ले आते। रोते हुए ज़ैनब ने उसका ज़ख्म देखने की कोशिश की तो जहांगीर ने अपनी तकलीफ पर से पूछ डालते नरमी से उसका चेहरा थामा। तुम रो क्यों रही हो पागल? मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा और यहाँ से चलो वरना दोबारा फायरिंग हो सकती है। वो उसे साथ लिए तेज़ी से अब वापस घर की जानिब मुड़ गया। पीछे छुपे आदमी ने दोबारा उसका पीछा करना चाहा मगर जहांगीर बार-बार पीछे मुड़कर देखता तो वो आदमी हार कर वहीं रुक गया। जाओ अंदर और अब सो जाओ, आइसक्रीम कल खिलाऊँगा, दरवाज़ा बंद कर लो। घर पहुँचते जहांगीर ने उसे तलकीन की तो वो रोते हुए उसके सीने से लगी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें गोली लग गई। ना मैं ज़िद करती और ना हम बाहर जाते। तुम अब अकेले कैसे जाओगे? जहांगीर प्लीज़ तुम यहाँ ठहर जाओ। साथ वाले अंकल डॉक्टर हैं, मैं उन्हें कॉल करके बुला लेती हूँ। तुम अभी अकेले मत जाओ प्लीज़, वो सिसकियों के दरमियान बोली तो जहांगीर ने उसके सर पर हाथ रखते उसकी पेशकश के बारे में सोचा। ठीक है, तुम मुझे उनका नंबर दो और खुद अंदर जाके कपड़े बदलो, ठंड लग जाएगी। वो अब घर का दरवाज़ा बंद करते अंदर आया तो खाला को बरामदे में देखकर उन दोनों को हैरत का झटका लगा। इतनी रात को तुम दोनों कहाँ गए थे? और ये तुम्हारे बाजू पर क्या हुआ है? वो गुस्से से पूछते जहांगीर की तरफ बढ़ी तो वो बेबस सा मुँह बनाते सोफे पर बैठा। हम बाहर वॉक करने के लिए गए थे और मुझे गोली लग गई। उसने बताया तो खाला ने मज़ीद सवालात करने की बजाय अपना फ़ोन उठाते डॉक्टर का नंबर डायल किया कि जहांगीर उन्हें अपनी औलाद की तरह अज़ीज़ था। ये चाय पी लो और बिस्किट भी खा लेना, तुम्हारे फेवरेट हैं। डॉक्टर के चेकअप के बाद वो कुछ देर आराम करने के बाद उठा तो ज़ैनब ने कमरे में आते साइड टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखी। खाला ने तुम्हें डाँटा तो नहीं? जहांगीर ने उसकी जर्द रंगत देखते तशवीश से पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। तो फिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? रोती रही हो? उठकर बैठते जहांगीर ने उसका चेहरा देखते पूछा तो ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इतना डर गई थी कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मुझे तो तुम्हारे बगैर रहना भी नहीं आता और ना ही मैं तुम्हें तकलीफ में देख सकती हूँ। अल्लाह करे जिसने भी तुम पर फायरिंग की है उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसकी सारी टांगें टूट जाएं। तो जहांगीर ने मुस्कुराहट दबाई। टांगें तो दो ही होती हैं। ज़ैनब की फिक्रमंदी पर अंदर से सरशार होते उसने लुकमा दिया। हाँ तो दोनों टांगें और दोनों बाजू टूट जाएं उसके। मेरे जहांगीर को तकलीफ दी है ना उसने। अल्लाह करे वो मर जाए। आस्तीनों से आंसू साफ करते वो जी भर कर बद्दुआएं दे रही थी। अच्छा बस बस, अब उस बेचारे को जहन्नुम पहुंचाकर न दम लेना। और ये क्या, सिर्फ बिस्किट लेकर आई हो? इंसान अपने होने वाले शौहर के लिए कोई पराठा या हलवा पूरी वगैरह बनवा लेता है। जहांगीर ने मुंह बिसोरते चाय का कप उठाया था। खुद बना लो नाशुक्र इंसान। एक तो इतनी मुश्किल से एजाज अंसारी की वीडियो देखकर चाय बनाई है, ऊपर से तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। पता है, वो पहले चीनी पत्ती डालकर उसे पकाता है फिर दूध डालता है। वैसे ही मैंने बनाई है इतनी मेहनत से। मजे से अपने कारनामे बताते ज़ैनब ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर किया। लेकिन मेरी जान, चाय से भूख नहीं मिटती। शादी के बाद क्या चाय पिला-पिला कर ही मुझे मार दोगी? कुछ सीख लो खाला से, उसने कहा तो ज़ैनब ने घूरते हुए उसके हाथ से कप लिया। बैठे रहो भूखे ही। वो नाराज़गी से बाहर चली गई जबकि जहांगीर बेख्तियार हँसते हुए उसके पीछे आया। वो पूरा दिन ज़ैनब को मनाने के बाद शाम के वक़्त अपने फ्लैट में वापस आया तो उसका दोस्त उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ा। आ गए मजनू? इस बार तो 2 दिन लगा कर आए हो। क्या लैला ने रोक लिया था? वो उसे छेड़ते हुए बोला तो जहांगीर ने अपने बाजू से शर्ट हटाते उसे दिखाई।
किसी ने दुश्मनी निकाली है। तुम्हारे मामू पुलिस में है ना? उन्हें फ़ोन करके रिपोर्ट दर्ज कराओ। मुझे पक्का यकीन है कि ये गोली मुझे मारने के लिए चलाई गई थी। वो संजीदगी से कहते बेड पर बैठा तो अली भी परेशानी से उसके साथ आ बैठा। लेकिन किसी को तुमसे क्या दुश्मनी होगी? मैं नहीं जानता। शायद कोई पब्लिशर या कोई राइटर। मैंने सबसे ही पंगे लिए हुए हैं, इसलिए कोई भी दुश्मन हो सकता है। वो अपनी पेशानी मसलने लगा तो अली ने पुरसोच अंदाज में उसे देखा, फिर फ़ोन निकालते अपने मामू का नंबर मिलाने लगा। वो सो रही थी जब बाहर उठते शोर से उसकी आँख खुली। वो सर पर दुपट्टा लेते बाहर आई तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो उसका बाप था जो आज कई साल बाद न जाने यहाँ क्यों आ गया था। ज़ैनब मेरी बच्ची। वो शख्स उसे देखते साथ उसकी तरफ बढ़ा तो ज़ैनब ने चंद कदम पीछे हटते उसे दूर रहने का इशारा किया। आप यहाँ क्यों आए हैं? खुदा का वास्ता है वापस चले जाएं। हम दोनों माँ बेटी को अब अकेले रहने की आदत हो गई है, इसलिए हमारी जिंदगी में मजीद जहर न घोलें सुल्तान साहब। अम्मी ने ज़ैनब को कंधों से थामते सुल्तान साहब के सामने हाथ जोड़े तो ज़ैनब की आंखों से कई आंसू एक साथ निकलकर गालों पर चमकने लगे। वो अपने बाप को 7 साल बाद देख रही थी। वो कितना बदल गए थे। उनके चेहरे पर अब झुर्रियां पड़ने लगी थीं। दाढ़ी और सर के बाल कुछ सफेद हो गए थे, मगर उनका गुस्सा और गजब अब तक वैसे का वैसा ही था। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। मैं इसका सगा बाप हूँ, इसलिए तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकती। ज़ैनब बेटा, इधर मेरे पास आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट डॉल हाउस लाया हूँ। याद है जब मैं जा रहा था तो तुम कितना रोई थी कि बाबा मुझे डॉल हाउस कौन ला के देगा? देखो, अब मैं ले आया हूँ। सुल्तान साहब ने मेज पर रखे खूबसूरत डॉल हाउस की तरफ इशारा किया तो ज़ैनब ने धुंधलाती निगाहों से उसे देखा। वो दिन उसे कैसे भूल सकता था जब उसका बाप दूसरी शादी करके घर से जा रहा था और ज़ैनब उसके पैरों में गिरकर उसे रोकने की कोशिश करते हुए डॉल हाउस का मुतालबा कर रही थी। 7 साल। आपको डॉल हाउस लाने में 7 साल लग गए। उसकी आवाज़ काँपी तो अम्मी ने उसे थामे रखा कि कहीं वो गिर ही ना जाए। जहांगीर से पहले अगर वो किसी शख्स से बेइंतहा मोहब्बत करती थी वो उसका बाप ही था, जो उसकी ज़िंदगी का कमज़ोर तरीन पहलू था। बेटा, मैं मसरूफ़ होता हूँ। तुम्हारे 2 छोटे भाई हैं, उनका स्कूल, ट्यूशन और फिर मुझे ऑफ़िस के काम भी तो होते हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ आने का वक़्त नहीं होता। वरना तुम जानती हो कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। उन्होंने आगे बढ़ते ज़ैनब के सर पे हाथ रखना चाहा, मगर ज़ैनब पीछे हो गई। 7 साल से आप मसरूफ़ थे? हमारा ज़रा ख़्याल नहीं आया आपको? आप जानते थे ना बाबा कि मैं आपके बगैर खाना तक नहीं खा सकती थी। आपको देखे बगैर सो नहीं सकती थी, लेकिन आपने मेरा ज़रा ख़्याल नहीं किया और मुझे छोड़कर चले गए। और अम्मी की आँखें देखें, आपकी जुदाई में रो-रो कर उन्होंने अपना क्या हाल कर लिया है। और अब आप ये कहने आ गए हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है? यहाँ से चले जाएँ वरना मैं कुछ गलत बोल दूँगी प्लीज़। अपने आँसुओं पर काबू पाते वो बज़ाहिर मज़बूती से बोली तो सुल्तान साहब ने नफ़रत से अम्मी को देखा जो बेआवाज़ रो रही थीं। तुम्हारी इस माँ की वजह से ही मैं ये घर छोड़कर गया था। अगर ये मेरी दूसरी बीवी को कबूल कर लेती तो आज हम सब साथ होते, मगर उसने समझौता नहीं किया और इन सालों में उसने तुम्हें भी मेरे खिलाफ कर दिया है। लानत है ऐसी औरत पर जो बेटी को बाप से बदगुमान करे। वो चीखते हुए गजब से बोले तो दरवाजे से अंदर दाखिल होता जहांगीर वहीं ठहर गया। वो अपने खालू की आवाज़ से उन्हें पहचान सकता था। खबरदार जो मेरी अम्मी के खिलाफ कोई भी बात की, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे बाप हैं और चले जाएं यहाँ से। हमें अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके कानों में ज़ैनब की आवाज़ गूंजी तो वो तेज़ी से अंदर चलता आया, जहाँ उसे देखते ही सुल्तान साहब के चेहरे पर नागावारी छा गई। तुम अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद लावारिसों की तरह यहाँ ही पड़े रहते हो? उन्होंने नफ़रत से पूछा तो जहांगीर चलता हुआ ज़ैनब के पास आ गया। ठीक हो तुम? रोना बंद करो। उसके मुकाबिल आते हुए ज़ैनब को समझाने लगा। ए मिस्टर, यहाँ से निकलो। ये मेरा और मेरे घर वालों का मामला है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। सुल्तान साहब ने इश्ताल अंगेज़ी से कहा तो जहांगीर तंज़िया मुस्कुराया। आपके घर वाले? ये घर वाले तब याद क्यों नहीं आए जब ज़ैनब और खाला आपके लिए रोती बिलखती थीं। खाला ने तन्हा ज़ैनब को पाला है और अब आप उस पर अपना हक जताने आ गए हैं? वो सख्ती से बोला तो सुल्तान साहब हँस दिए। ज़ैनब मेरी बेटी है और मैं इसका बाप हूँ। तुम हमारे दरमियान बोलने वाले कौन होते हो? निकलो यहाँ से वरना टाँगें तोड़ दूँगा। उन्होंने उसे धमकी दी, मगर वो ज़ैनब के साथ डटकर खड़ा रहा। मैं उसका होने वाला शौहर हूँ और मेरे होते हुए उसकी आँखों में आपकी वजह से आँसू कभी नहीं आएँगे। वो दीदा दिलेरी से बोला तो सुल्तान साहब ने आगे बढ़ते उसके मुँह पर घूंसा मारा। उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने गुस्सा काबू करते ज़ैनब को अपने मज़बूत वजूद के पीछे छुपा लिया। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ क्योंकि मैं उसके लिए एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन का रिश्ता कबूल कर चुका हूँ। कल उनकी मंगनी और अगले हफ्ते शादी है, इसलिए अब ये बकवास बंद करो, किसी और के सामने ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से उन सब के कानों में सीसा पिघलाते ज़ैनब की तरफ बढ़े तो जहांगीर ने उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ मजबूती से लगा लिया। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उसकी मंगनी 2 साल पहले हो चुकी है और आप इसे उसकी मर्जी के बगैर कहीं नहीं ले जा सकते। खाला, आप पुलिस को फ़ोन करें। वो ज़ैनब के आंसुओं से बेचैन होते चीखा तो सुल्तान साहब ने ज़ैनब को बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचने की कोशिश की। चलो मेरे साथ, वरना अभी तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। फिर इस उम्र में बदनामी संभालती रहना। और इस जहांगीर में कौन से हीरे जड़े हैं जो इससे मंगनी की तुमने?
वो ज़ैनब की सिसकियाँ नज़रअंदाज किए उसे अपनी तरफ खींच रहे थे, जब जहांगीर ने उन्हें ज़ोर से धक्का देते ज़ैनब से दूर किया। अब अगर उसको हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊँगा कि आप मुझसे बड़े हैं। खाला, आप इसे अंदर लेकर जाएँ प्लीज़। उसने कहा तो अम्मी ज़ैनब को साथ लिए कमरे में चली गईं, जबकि जहांगीर ने सुर्ख आँखों से सुल्तान साहब को देखते उन्हें धक्के मारते घर से निकाल दिया। आज के बाद यहाँ मत आइएगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ताकत में सुल्तान से साहब से बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें बाहर निकालते उसने धमकी दी। मैं देखता हूँ तुम मेरी बेटी से कैसे शादी करते हो। मैं तुम सबको देख लूँगा, छोड़ूँगा नहीं किसी को, सुल्तान साहब गुस्से से कहते चले गए। जबकि जहांगीर दरवाज़ा बंद करते अंदर आया, जहाँ ज़ैनब अम्मी से लिपटी ज़ारो कतार रो रही थी। बस वो चले गए हैं, परेशान ना हो, नरमी से कहते जहांगीर ने उन दोनों को अपने सीने से लगाया तो वो यूं ही रो दी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, आज उस शख्स ने तुम्हें भी बहुत बातें सुनाई हैं। उसे मालूम ही नहीं कि हमारे घर को तुम ही ने संभाल रखा है। ना सिर्फ खर्चा बल्कि तुम हर जगह हमारे साथ साहिबान की तरह खड़े हो। मगर ये बात इस कमज़र्फ़ को कहाँ समझ आएगी, जो हमें मुश्किल में छोड़कर चला गया था। अम्मी ने रोते हुए उससे माफ़ी मांगी तो वो मुस्कुरा दिया। छोड़े खाला, ऐसे लोगों को कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। और अब आप दोनों रोना बंद कर दें प्लीज, वरना आपके आंसुओं से लाहौर में सचमुच का समंदर बन जाएगा। उसने माहौल पर छाई सोगवारियत को दूर करने के लिए मजाक में कहा तो अम्मी मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, तुम इसे संभालो, वो कहकर उठी और किचन में चली गई, जबकि जहांगीर ने ज़ैनब को देखते उसके गालों पर अपनी हथेलियां रखकर आंसू उनमें जज्ब किए। इतना रोगी तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा यार, बस करो ना, वो मासूमियत से बोला तो ज़ैनब ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। चुप हो जाओ, और तुम्हें नहीं पता बाबा को देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरी है। अगर तुम न होते तो आज मुझे यहाँ से ले जाते। जहांगीर, तुम मम्मी से बात करो ना कि वो हमारी शादी कर दें। मुझे डर है कि बाबा मुझे तुमसे दूर कर देंगे और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो उससे इल्तिजा करने लगी तो जहांगीर ने उसकी नाक खींची। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें जुदा कर सके, इसलिए फजूल मत सोचो और अभी अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर लो, फिर शादी भी हो जाएगी। बीए के पेपर्स दे लो, फिर शादी की बात करूंगा खाला से। वो बोला तो ज़ैनब ने रोती आंखें रगड़ी। मुझे कोई पेपर नहीं देना, मुझे बस शादी करनी है। तुम्हें बाबा का नहीं पता, वो कुछ ठान लें तो करके ही छोड़ते हैं। और मैं पहले ही बता रही हूँ कि अगर मेरी शादी किसी और से हुई तो मैं जहर खा लूंगी। वो सिर्फ उसे ही धमकियां दे सकती थी। जहांगीर के चेहरे पर कर्ब उतरा। कैसी बातें कर रही हो, आइंदा ये बात मत करना वरना बहुत मारूंगा। और ठीक है, मैं खाला से बात करता हूँ। तुम अब रोना बंद करो, सारा काजल फैला लिया है, चुड़ैल लग रही हो बिल्कुल। उसकी बात मानते जहांगीर ने उसका मजाक उड़ाया। इस चुड़ैल को सारी उम्र भुगतना है तुमने। पता नहीं बाबा क्यों वापस आ गए हैं और कह रहे थे कि मेरे दो सौतेले भाई भी हैं। मेरे हिस्से का सारा प्यार वो दोनों ले गए। अल्लाह करे वो मर जाए। वो यूं ही दिल दुखने पर बद्दुआएं देने लगती थी। ऐसे नहीं कहते, उन बच्चों का क्या कसूर। और ये हाथ पर क्या हुआ है? जहांगीर ने उसे समझाते उसका हाथ थामा जहाँ छोटा सा जख्म था। तुमने कहा था ना कि खाना पकाना सीख लो, तो कल मैं अम्मी के साथ प्याज कटवा रही थी कि मेरे हाथ पर छुरी लग गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मुझे खाना पकाने का कहते, ना मुझे जख्म होता। अब उसे नया दुख याद आया तो जहांगीर ने मुस्कुराहट दबाई। यानी मोहतरमा मुझे खुश करने के चक्करों में अपना हाथ काट बैठी हैं। पागल लड़की, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे कुकिंग आती है और अपने फ्लैट का सारा काम मैं खुद ही करता हूँ, इसलिए तुम्हें फिलहाल इन झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं। शादी के बाद सब सिखा दूंगा। प्यार से उसे देखते जहांगीर ने समझाया तो ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लोगे जैसे बाबा ने की, इसलिए मैं तुम्हें किसी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। वो बेबसी से बोली तो जहांगीर को इस पर सुल्तान साहब पर बेइंतहा गुस्सा आया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, तुम मेरी कुल कायनात हो ज़ैनब। ऐसा मत सोचा करो, हर कोई तुम्हारे बाबा की तरह नहीं होता। वो कुछ और भी कहता मगर अम्मी चाय के 2 कप लिए अंदर आई तो उसने ज़ैनब का हाथ छोड़ा। मैंने सोचा है कि इस जुम्मे को तुम दोनों का निकाह करवा दूं। और जहांगीर, तुम अब यहाँ ही रहो क्योंकि वो दोबारा हमें डराने आएंगे और अगर हम दोनों घर में अकेली हुई तो उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए तुम यहाँ ही रह जाओ। वो मौके की ज़रूरत समझकर फैसला कर रही थी। ज़ैनब शादी के नाम पर रोना भूलकर मुस्कुराने लगी। ठीक है खाला, लेकिन इतनी जल्दी निकाह की तैयारियां कैसे होंगी? जहांगीर ने सवाल किया। सादगी से निकाह करना है, बस अपना और ज़ैनब का जोड़ा ले आना और निकाह खुआ का बंदोबस्त कर लेना। खाना मैं घर में ही पका लूंगी, उन्होंने कहा तो ज़ैनब खुशी से खड़ी हुई। मैं रेड कलर का लहंगा लूंगी जिस पर ढेर सारे मोती लगे हों और गोल्डन सैंडल लूंगी। और मुझे पॉलर से तैयार होना है अम्मी। मैं चाहती हूँ मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगूं। वो अपने तमाम गम भुलाए खिलखिलाई तो जहांगीर भी मुस्कुरा दिया। कुछ शर्म बाकी है तुम में? कैसे दीदा दिलेरी से अपनी शादी की बातें कर रही हो? ऐसे मौकों पर लड़कियां शर्माती हैं, मगर तुम्हें क्या पता कि शर्म भी किस खेत की मूली है। अम्मी ने उसे झिड़का तो वो अपना दुपट्टा लहराते झूमी। खेत की मूली हो या गाजर, मुझे नहीं पता, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मुझे खूबसूरत नजर आना है और ऐसा तैयार होना है कि जहांगीर मुझे देखता ही रह जाए। वो बेशर्मी की हदें पार करते बोली तो जहांगीर ने सर झुकाया।
वो अपने साथ उसे भी मरवाना चाहती थी। वो तो वैसे भी सिर्फ तुम्हें ही देखता है, इसलिए फजूल बातें बंद करो। और तुम क्या नीचे मुँह करके हँस रहे हो? जाओ जाकर दूसरे कमरे में चाय पियो और शादी तक तुम दोनों मुझे इकट्ठे कहीं नज़र ना आओ, वरना दोनों की टाँगें तोड़ दूँगी। वो बारी-बारी दोनों को डाँटते हुए बोलीं तो जहांगीर ताबेदारी से उठा और कमरे से निकल गया, जबकि ज़ैनब खुशी से झूमने लगी थी कि उसे उसके पसंदीदा तरीन शख्स का साथ नसीब होने वाला था। ये आप क्या कह रहे हैं सुल्तान साहब? यानी आपसे एक लड़का नहीं सँभाला गया? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ज़ैनब की शादी मुझसे न की, तो मैं आपकी कंपनी ख़त्म करवा दूँगा। वो अपने ऑफ़िस में बैठे काम कर रहे थे जब हम्माद गुस्से से हाँफता अंदर दाखिल हुआ। वो दूसरी कंपनी का अफ़सर था, जिससे सुल्तान साहब की कंपनी ने मुआहदा कर रखा था। एक रोज़ कॉलेज से वापसी पर ज़ैनब की टक्कर उसकी गाड़ी से हो गई थी और तब से वो ज़ैनब को दिल दे चुका था। उसके बारे में मालूमात निकलवाने के बाद जब उसे ये मालूम हुआ कि ज़ैनब सुल्तान साहब की बेटी है, तो उसने सुल्तान साहब को लालच देकर ज़ैनब का रिश्ता माँगा और जहांगीर को मारने की कोशिश भी की, मगर जहांगीर की किस्मत अच्छी थी कि गोली उसके बाजू में लगी, वरना शायद अब तक हम्माद ज़ैनब को हासिल कर चुका होता। मैंने कोशिश की मगर वो जहांगीर मुझे धक्के मारने लगा था। खैर आप फ़िक्र ना करें, मैं ज़ैनब को आपके हवाले कर दूँगा, बस मुझे कुछ दिन का वक़्त चाहिए। वो बोले तो हम्माद उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मुझे 2 दिन के अंदर-अंदर आपकी बेटी चाहिए, वरना मैं ना सिर्फ़ जहांगीर को ख़त्म कर दूँगा बल्कि आपकी बेटी को कहीं मुँह दिखाने काबिल नहीं छोड़ूँगा। आप जैसे भी बाप हो, मगर बेटी की इज़्ज़त लुटने पर आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी। हम्माद ने सफ़ाकी से कहते सुल्तान साहब से अपना मुतालबा मनवाना चाहा, तो उनके चेहरे पर दुःख उतरा। आप ऐसी बातें मत करें, मैं इज़्ज़त से ज़ैनब का हाथ आपके हाथ में दूँगा। बस कुछ दिन सब्र कर लें। बेटी की इज़्ज़त का सुनकर वो बेबस हो गए थे। कुछ दिन नहीं सुल्तान साहब, बस 2 दिन और घड़ी की सुइयाँ। इससे आगे बढ़ी तो आपकी बेटी की बर्बादी का वक़्त शुरू हो जाएगा। इसे सिर्फ़ मेरी धमकी मत समझिएगा। वो गुस्से से उन्हें धमकी देते कुर्सी को ठोकर मारकर बाहर निकला तो सुल्तान साहब ने अपना सर थाम लिया। जहांगीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी ने देख लिया तो बहुत डाँटेंगी। वो लैपटॉप खोले शादी के जोड़े देख रही थी जब खिड़की से छलांग लगाकर कोई अंदर दाखिल हुआ। एक मज़बूत मर्द को रात के इस पहर कमरे में देखकर उसे यही गुमान हुआ था कि वो जहांगीर है। मगर जब वो शख्स उसके करीब आया तो उसके नकाबपोश चेहरे को देखकर ज़ैनब को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो नकाबपोश आदमी अपनी से आँखें ज़ैनब पर गाढ़े उसे दीवार से लगा चुका था। क कौन हो तुम? और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से वरना मैं शोर करके सबको बुला लूँगी। घबरा कर दीवार से लगते हुए बोली तो हम्माद का कहकहा फ़िज़ा में बुलंद हुआ। ऐसी गलती मत करना, वरना तुम्हारी ही बदनामी होगी और चुपचाप खड़ी रहो वरना हालत बिगाड़ दूँगा। वो अपनी जेब से गन निकालते उसकी कनपट्टी पर रख चुका था। गन देखकर ज़ैनब का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। खौफ से उसकी आवाज़ अंदर ही फँस गई थी। अगर अपनी और जहांगीर की जान बचाना चाहती हो तो उससे शादी से इनकार कर दो, वरना तुम दोनों को एक साथ ऊपर भेजूँगा। तुम मेरे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती और अगर ऐसा करने की कोशिश करोगी तो अपनी और अपनी उस आशिक की जान गँवाओगी। समझ गई या और समझाऊँ? बेदर्दी से उसके गले से दुपट्टा खींचते हुए गज़बनाक लहजे में बोलते उसके कान पर झुका तो ज़ैनब की रूह काँप गई। आँसू मुतवातर बहने लगे थे और वो अपना काँपता वजूद लिए उस शख्स को देखती रही जो न जाने क्या करने वाला था। मुझे छोड़ दो प्लीज़। मैं जहांगीर से मोहब्बत। उसने कुछ बोलने की कोशिश की तो हम्माद ने उसकी गर्दन दबोच ली। खबरदार, जो तुमने उस जहांगीर का नाम भी लिया, वरना गला दबा दूँगा। तुम सिर्फ़ मेरी मिल्कियत हो, ये बात याद रखना वरना मैं सारी दुनिया को आग लगा दूँगा। और मैं सिर्फ़ कहता नहीं हूँ बल्कि करके भी दिखाता हूँ। वो इस कदर ज़ोर से उसकी गर्दन दबा रहा था कि ज़ैनब की साँसें अटकने लगीं। उसे शदीद खाँसी होने लगी थी जब हम्माद ने उसे धक्का देते बेड पर फेंका। नहीं, प्लीज़ मुझे मत मारो मुझे। वो सिसकते हुए उसके सामने हाथ जोड़ने लगी तो हम्माद उस पर झुकते मकरू अंदाज़ में हँसा। तुम बहुत हसीन हो मगर याद रखना ये हुस्न सिर्फ़ मेरे लिए है। उसकी गर्दन पर हाथ फेरते वो मुस्कुराया तो वो तकलीफ़ की शिद्दत से ज़ैनब ने आँखें बंद कर लीं। वो अनजान शख्स उसे छू रहा था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। आई लव यू माय प्रिंसेस। बाद में मिलते हैं, मगर याद रहे कि जहांगीर से जितना दूर रहोगी उसकी जान उतनी ही महफूज़ रहेगी। कुछ देर उसे अज़ियत देने के बाद वो उसे धमकी देकर खिड़की से बाहर छलांग लगा गया, जबकि ज़ैनब अपने सीने पर हाथ रखकर गहरे-गहरे साँस लेने लगी। उसके आँसू हलक में अटक गए थे और जैसे सातों आसमान उस पर टूटे थे। साँसें रुकने लगीं तो उसने काँपते हाथों से साइड टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाया और चंद घूँट पानी पीकर वो ज़ारों कतार रो दी। जब भी वो खुश होने लगती थी तो न जाने क्यों उसकी ज़िंदगी में आज़माइश का नया बाब शुरू हो जाता था। सुबह का सूरज टलू हुआ तो उसने अपना बिखरा वजूद समेटा और चेहरे पर पानी के चंद छींटे मारकर बाहर निकली, जहाँ जहांगीर नाश्ते की मेज़ सजा रहा था। तुम उठ गईं? ये देखो आज मैंने तुम्हारे पसंद का ऑमलेट बनाया है। खाला बता रही थी कि तुम नाश्ते में बहुत चोर हो, इसलिए आज मैं खुद तुम्हें नाश्ता करवाऊँगा। उसे देखकर बेध्यानी में कहते जहांगीर ने उसके लिए कुर्सी खींची, तो वो किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह यूँ ही खड़ी जहांगीर को देखती रही। वो उसका पसंदीदा इंसान था, वो उसकी मताए हयात था। वो कैसे उस शख्स को इनकार कर सकती थी जिससे शादी करने के उसने हमेशा से ख्वाब देखे थे।
हेलो मिस, कहाँ खो गई? एक मिनट, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? रोती रही हो तुम? उसके चेहरे की बेरौनकी देखकर जहांगीर उसके करीब आया तो जैनब ने चंद कदम उठाते उससे फासला बरकरार रखा। क्या हुआ है जैनब, किसी ने कुछ कहा है क्या? वो उसकी हरकत पर मजीद परेशान हुआ तो अम्मी भी किचन से आ गई। इसे देखें, खाला कुछ बोल ही नहीं रही और शक्ल देखें इसकी। जहांगीर ने घबरा कर कहा तो अम्मी ने जैनब का बाजू पकड़ा। क्या हुआ है बेटा, तुम जहांगीर को ऐसे क्यों देख रही हो? कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? बताओ मुझे। उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा तो जहांगीर ने ज़ैनब के करीब आते उसकी गर्दन पर पड़े सुर्ख निशान देखे। ये क्या हुआ है तुम्हारी गर्दन पर? किसने किया है ये? बोलो ज़ैनब, किसने हाथ लगाया है तुम्हें? गुस्से से उसे पकड़ते जहांगीर ने उसकी गर्दन देखी जहाँ सुर्ख निशानों के साथ नाखून चुभने के जख्म भी थे। ज़ैनब की आंखें सुर्ख होने लगीं। ज़ैनब, इधर बैठो और बताओ ये सब किसने किया है? किसने तुम्हें मारा है? बोलो, मेरा दम घुट रहा है। उसे कुर्सी पर बिठाते जहांगीर उसके सामने घुटनों के बल बैठा तो वो जब्त खोते बेख्तियार रो दी। वो आदमी रात को मेरे कमरे में आया और उसने मेरी गर्दन से दुपट्टा खींचा, मेरा गला भी दबाया और फिर मेरी गर्दन पर अपने नाखून मारता रहा। वो कह रहा था कि अगर मैं तुमसे शादी की तो वो तुम्हें मार देगा और मुझे भी। सारी बात बताते वो चेहरा झुकाकर रोने लगी तो जहांगीर की आंखों में खून उतर आया। कौन था ये बेगैरत? शक्ल कैसी थी उसकी? बताओ, मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट करवाता हूँ। वो नकाब में था और तुम कुछ मत करो। बस हमें ही शादी नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती जहांगीर। तुम मेरे ना भी हो मगर जिंदा रहो। बेबसी से कहते बिलक बिलक कर रो दी तो जहांगीर ने भागकर उसके कमरे का जायजा लिया, मगर हम्माद पीछे कोई सुराग छोड़कर नहीं गया था। अम्मी जैनब को सीने से लगाए तसल्ली दे रही थी और जहांगीर कमरा देखने के बाद अब बेचैनी से बरामदे के चक्कर लगा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस बदबख्त के टुकड़े टुकड़े कर दे जिसने जैनब को हाथ लगाया। हमें शादी नहीं करनी चाहिए, तुम मेरी बात मान लो प्लीज। जैनब ने सिसकियों के दरमियान बोलने की जिसारत की। तो क्या तुम उस जाहिल से शादी करोगी जिसने तुम्हारा ये हाल किया है? चुप हो जाओ वरना मैं अपना जब्त खो दूंगा। जिंदगी में पहली बार उस पर चीखते वो अपना सर थाम कर बैठा था। मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे लगा कि यहाँ रहूँगा तो तुम्हारी हिफाजत कर लूँगा, मगर मैं इसमें नाकाम रहा। वो बेगैरत आधी रात को घर में घुस गया, तुम्हारे कमरे तक पहुँच गया और मुझे पता भी नहीं चला किस कदर नाकाम हूँ मैं। गुस्से से मेज़ पर हाथ मारते उसने खुद पर गुस्सा उतारा। कुछ करो जहांगीर, हमें कोई और घर ढूँढ दो, जहाँ हम महफूज़ रह सकें। मुझसे अपनी बेटी की हालत नहीं देखी जा रही। अम्मी ने रोते हुए मिन्नत की मगर वो गहरी सोच में गुम था। घर बदलने से कुछ नहीं होता खाला, और मुझे पक्का यकीन है कि ये सब खालू ने करवाया है। वो नहीं चाहते कि मेरी और ज़ैनब की शादी हो, इसलिए उन्होंने ज़ैनब को डराने के लिए किसी आदमी को भेज दिया। मगर हम डरने वालों में से नहीं हैं। मैं आज ही ज़ैनब से निकाह करूँगा और देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। गुस्से से फैसला करते वो उठा तो ज़ैनब उसके पास आई। तुम्हारी जान खतरे में है जहांगीर, वो तड़प कर बोली। मेरी जान तो तुम हो ज़ैनब, और जिसने तुम्हारा ये हाल किया है कसम खाकर कहता हूँ कि उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? वो अम्मी की मौजूदगी का लिहाज रखे बगैर मोहब्बत से बोला तो ज़ैनब सर झुकाकर रोने लगी। उसने मुझे बहुत अज़ियत दी है, पूरी रात मैंने डर कर गुजारी। वो इतना खौफनाक था कि उसके हाथ भी चुभने वाले थे। वो तकलीफ से बोली तो जहांगीर की गर्दन में गिल्टी उभर कर मद्दम हुई थी। मैं उसके हाथ तोड़कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा, लेकिन तुम्हें मजबूत होना है। खाला, आप उसके जख्मों पर ट्यूब लगाएं, मैं फ़ोन करके निकाह ख्वाह को बुलाता हूँ। उसने कहा तो अम्मी ज़ैनब को लिए कमरे में चली गईं, जहाँ वो दोनों माँ बेटी काफ़ी देर तक रोती रही थीं कि उनके घर के सरबराह ने ही उनकी ज़िंदगी उजाड़ कर रख दी थी। कुछ देर बाद निकाह ख्वाह आ गए तो ज़ैनब को तैयार होकर जहांगीर के पहलू में बिठाया गया। अम्मी चाय की ट्रे मेज़ पर सजाकर खुद भी ज़ैनब के साथ बैठ गईं। मोहल्ले के चंद लोगों को बुला लिया गया। निकाह ख्वाह ने कागज़ात निकालते इजाब कबूल का सिलसिला शुरू करना चाहा, मगर तभी फायरिंग की आवाज़ के साथ घर को पूरी तरह से घेर लिया गया। कुछ नकाबपोश आदमी हाथों में गन्स लिए घर में दाखिल हुए तो सभी लोग डरकर कमरों की तरफ भागे, जबकि ज़ैनब ने मजबूती से जहांगीर का बाजू पकड़ा था। वो उन लड़कों में उस स्याह आँखों वाले हम्माद को पहचान सकती थी। खौफ से जहांगीर को थामे उसकी आँखों से आंसुओं का समंदर उबल पड़ा। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इससे शादी से इनकार कर दो, तुम्हें समझ नहीं आई? इसलिए अब अपने कज़न की मौत अपनी आँखों के सामने देखो, यही तुम्हारी सज़ा है। हम्माद ने दहाड़ते हुए जहांगीर की तरफ बढ़ना चाहा तो वो सोफे से उठा और उसने गुस्से से हम्माद का गिरबान पकड़ लिया। तू होता कौन है ज़ैनब को डराने वाला? और जितनी तकलीफ तूने ज़ैनब को दी है, उससे दुगनी मैं तुझे दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? वो जो ज़ैनब की हालत पर परेशान था गुस्से से चीखा तो हम्माद ने उसे धक्का देते खुद से दूर किया और अपने साथियों को आंख का इशारा किया तो उन्होंने ज़ैनब को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे जहांगीर। वो सिसकी तो जहांगीर ने मुड़कर उसे देखा फिर उसकी तरफ बढ़ा, मगर उससे पहले ही हम्माद ने उसकी टांग पर गोली मार दी। दर्द की एक लहर जहांगीर के पूरे जिस्म में दौड़ गई। तकलीफ की शिद्दत से आंखें नम होने लगी, मगर वो लड़खड़ाकर गिर नहीं सकता था, क्योंकि अगर आज वो गिरता तो ज़ैनब को सारी उम्र के लिए खो देता। आह! जहांगीर, उसे छोड़ दो, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं तुमसे शादी कर लूँगी।
لیکن پلیز جہانگیر کو چھوڑ دو، اسے مت مارو۔ جہانگیر کی تکلیف پر لرزتے زینب نے حماد سے کہا تو جہانگیر نے بے یقینی سے زینب کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زینب؟ یہ تمہیں ڈرانا چاہتا ہے اور تم اس کے ارادوں کو کامیاب کر رہی ہو؟ منہ بند کرو اپنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زینب کے فیصلے پر اس نے درد سے کہا تو حماد فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ چھوڑ دو میری پرنسس کو، اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تو انہوں نے زینب کے ہاتھ چھوڑ دیے، جبکہ امی سہمی ہوئی زینب کے ساتھ کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ زینب کے قریب آتے حماد نے دوبارہ پوچھا تو اس نے آنسو بہاتی آنکھوں سے جہانگیر کو دیکھا، جو اپنا درد چھپائے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں تم سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ اس کے ہونٹوں سے ذرا سی جنبش کے بعد لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تو جہانگیر کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ ویری گڈ، تم تو بہت سمجھدار نکلی۔ چلے مولوی صاحب ہمارا نکاح پڑھوائیں۔ وہ زبردستی زینب کا ہاتھ پکڑے صوفے پر بیٹھا تو جہانگیر نے اپنے ہاتھ سے اپنی ٹانگ کا خون روکنے کی کوشش کی، پھر بمشکل کھڑا ہوا۔ تم یہ نہیں کر سکتے، ہمارے دین میں زبردستی نکاح حرام ہے، تم زینب کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب آپ کچھ بولے نا، یہ سب روک لیں۔ وہ بولا تو نکاح خواہ نے بے بسی سے حماد کے آدمیوں کو دیکھا جو ان پر بندوق تانے کھڑے تھے۔ جہانگیر تم پلیز چپ ہو جاؤ، زینب نے اسے مدد طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے ہنس دیا۔ میں چپ ہو جاؤں؟ تم میری جان بچانے کے لیے یہ سب کر رہی ہو، مگر تم نہیں جانتی کہ تمہارے چھوڑ جانے کے بعد بھی میں زندہ نہیں بچوں گا، مر جاؤں گا میں۔ وہ درد سے بولا تو زینب نے اس کی ٹانگ کو دیکھا جہاں سے خون کے بہنے میں مزید تیزی آنے لگی تھی۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شادی تو زینب کی مجھ سے ہی ہوگی۔ آپ نکاح شروع کرتے ہیں یا اوپر کا ٹکٹ کٹواؤں؟ حماد نے نکاح خواہ کو دھمکی دی تو وہ اس سے معلومات لیتے کاغذات تیار کرنے لگے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، جہانگیر خود میں ہمت پیدا کرتے حماد کو مارنے کے لیے لپکا، مگر اس سے پہلے ہی حماد کے آدمیوں نے اسے پکڑتے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ وہ کراہ کر نیچے گرا تو دوسرے آدمی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ کے ساتھ اسے زمین پر پٹخا۔ زینب جو حماد سے نکاح کے لیے تیار ہو گئی تھی وہ لرز کر اٹھی۔ جب میں راضی ہو گئی ہوں تو تم لوگ جہانگیر کو کیوں مار رہے ہو؟ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہوتا تب تک یہ اسی طرح پٹے گا، اس لیے تم بیٹھ جاؤ۔ حماد نے کہا تو وہ آنکھوں میں نمی لیے واپس بیٹھ گئی، جبکہ وہ آدمی جہانگیر کو بری طرح پیٹتے چلے جا رہے تھے۔ زینب سلطان ول سلطان احمد، کیا آپ کو نکاح حماد علی ول علی مصطفیٰ؟ نکاح خواہ حجاب و قبول کرنے لگے تو زینب نے جہانگیر کو دیکھا جو ادموا ہوئے فرش پر پڑا بے ہوشی کے بہت قریب تھا، اس کا جسم خون میں لپٹا ہوا زینب کے دل کی دھڑکنوں کو تھمنے پر مجبور کر گیا۔ جب جہانگیر نے بمشکل آنکھیں کھولتے درد سے اسے دیکھا، رک جاؤ، کیا ہو رہا ہے یہ سب، پکڑو انہیں۔ تبھی چند پولیس انسپکٹر گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے حماد کے آدمیوں کو پکڑ لیا۔ انہیں ہاسپٹل پہنچاؤ، جلدی ایمبولینس کو فون کرو، پولیس افسر نے حکم دیا تو سپاہی جہانگیر کو اٹھانے لگے، جبکہ پولیس آفیسر نے آگے بڑھتے حماد کو پکڑ کر اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ ان سب مجرموں کو گاڑی میں بٹھاؤ، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا تو وہ حماد کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ زینب اکھڑتی سانسوں کے ساتھ جہانگیر کی طرف دوڑی۔ جہانگیر دیکھو، میرا نکاح نہیں ہوا، میں تمہاری ہوں، آنکھیں کھولو پلیز، جہانگیر میری طرف دیکھو نا۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے جہانگیر کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ہوش و خود سے بے گانہ ہو گیا تھا۔ امی دیکھیں نا اسے، کیا ہو گیا ہے، اسے بولیں اٹھ جائے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ اپنی ماں سے لپٹی تو اتنے میں ایمبولینس کے سائرن کی آواز محلے میں گونج اٹھی۔ سٹی اسپتال کے باہر تماشا برپا ہوا تھا۔ پولیس زینب اور امی سے پوچھ گچھ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ جہانگیر کا علاج چل رہا تھا۔ 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ پیشنٹ کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، ہمیں خون کا ارینج جلد از جلد کرنا ہے، مگر ان کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے اور ابھی ہمارے پاس یہ بلڈ نہیں ہے۔ آپ کہیں سے ارینج کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ شاید ہم پیشنٹ کو نہ بچا پائیں۔ ڈاکٹر نے انہیں اطلاع دی تو زینب نے پریشانی سے امی کو دیکھا۔ میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، آپ میرا بلڈ لے لیں۔ ایک دم اپنا بلڈ گروپ یاد آتے وہ چیخی تو ڈاکٹر اسے اپنے ساتھ لیے لیبارٹری کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد خون دیکھ کر وہ جہانگیر کی صحت کے لیے نوافل پڑھنے لگی تو اس کی آنکھیں ابلنے لگیں۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے سامنے جہانگیر پر اتنا ظلم کیا جا سکتا ہے۔ وہ مضبوط مرد تھا، مگر 6 آدمیوں کا مقابلہ کیسے کرتا جن کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ یا اللہ میرے جہانگیر کو بچا لے، اسے ٹھیک کر دے، اسے میری زندگی بھی لگا دے۔ اللہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اس کے بغیر رہنا نہیں آتا، پلیز اسے بچا لے، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہے اللہ، میرے جہانگیر کو زندگی دے دے۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سسکیاں اسپتالوں کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ حیرت سے مڑ کر زینب کو دیکھتے جو کوریڈور میں بیٹھی سسکیوں سے روتے ہوئے اپنے محبوب کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ سب لوگوں کو اس عورت پر حیرت تھی جو ایک مرد کے لیے اپنا آپ بھلا بیٹھی تھی، مگر یہی تو عشق تھا جو زینب سلطان کی جان لینے پر تل گیا تھا۔ یا اللہ پلیز جہانگیر کی زندگی لکھ دے، میں اسے کبھی تنگ نہیں کروں گی، نہ ہی اس سے فضول ضدیں کروں گی، نہ رات کو آئس کریم کی ضد کروں گی اور نہ ہی اس سے بدتمیزی کروں گی، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، یا اللہ پلیز اسے بچا لے۔ وہ سجدے میں جھکی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دی تو کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ڈر کر سیدھی ہوئی تو سلطان صاحب کو سامنے دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بابا
उसे लगा वो उसे तसल्ली देने आए हैं। उठो बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, उन्होंने कहा तो वो खड़ी हुई। जहांगीर जिंदगी और मौत के दरमियान है बाबा, उसके लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। वो रोते हुए बोली तो सुल्तान साहब ने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी। उसकी जिंदगी के चांसेस बहुत थोड़े हैं बेटा, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हमाद अच्छा लड़का है, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। उसके घर में सिर्फ उसकी वालदा होती हैं। घर में हर वक्त नौकर काम करते रहते हैं। तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। तुम्हें कोई काम खुद नहीं करना पड़ेगा और जिस चीज़ पर हाथ रखोगी वो तुम्हें दिला देगा। मगर ये जहांगीर अगर ठीक हो भी जाए तो तुम्हें इतनी आसानी नहीं दे सकता। मैंने पुलिस से बात की है, हमाद की बेल हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम कोई गलती ना करो। वो धीमे लहजे में उसके कानों में सूर फूंकते रहे और वो दम साधे सुनती रही। उसे यकीन नहीं आता था कि उसका बाप इस कदर घटिया भी हो सकता था। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अपने हाथ में है बेटा। वो रात को तुम्हारे कमरे में घुस गया था तो वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए समझदारी का मुजाहरा करो और जहांगीर से शादी की जिद छोड़ दो। शायद इस तरह तुम अपनी इज्जत और जहांगीर की जान बचा सको, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स को खरीदना हमाद के लिए बाएं हाथ का खेल है। तुम समझ रही हो ना? उन्होंने उसके मासूम दिमाग में जहर घोला तो वो तड़प कर आईसीयू को देखने लगी, जिसके अंदर जहांगीर बेहोश पड़ा था। आप कैसे बाप हैं कि अपनी बेटी से उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन रहे हैं? जहांगीर, मेरी जिद नहीं, मोहब्बत है। जब आप हमें छोड़कर चले गए थे तब जहांगीर ने हमें संभाला। वो मेरे साथ साई की तरह रहा, मेरी हिफाजत की, और आज जब वो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक़्त से गुज़र रहा है, तो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलकर हम्माद से शादी कर लूँ? आप कैसे बाप हैं? चंद आँसू मोतियों की तरह गालों पर चमके। इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अगर तुमने अपनी ज़िद न छोड़ी तो तुम्हारी इज़्ज़त को खतरा हो सकता है। मैं सिर्फ़ तुम्हारी इज़्ज़त बचाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तो ज़ैनब दर्द से मुस्कुरा दी। क्या मेरी इज़्ज़त इतनी नाज़ुक है कि मैं इस वक़्त जहांगीर को अकेला छोड़ दूँ? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो फैसला करते बोली। यानी तुम्हें जहांगीर का भी एहसास नहीं है? अगर हमाद ने डॉक्टर्स को खरीद लिया, तो कैसे बचा पाओगी तुम जहांगीर को? उन्होंने ताबूत में आखिरी कील ठोंकी, तो ज़ैनब बेबसी से उन्हें देखने लगी। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन मुझसे वादा करें कि जहांगीर को कुछ नहीं होगा। वो अपनी मोहब्बत का समझौता करते सुल्तान साहब की बात पर रज़ामंद हुई कि फ़िलहाल उसे जहांगीर की ज़िंदगी से अहम कोई शय न थी। वादा, चलो। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसके साथ चलते हुए अम्मी की तरफ आए ताकि उन्हें ज़ैनब के फैसले का बता सके। मैं हार गई जहांगीर, हमारी मोहब्बत हार गई और ये सफ़ाक दुनिया जीत गई। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बेहोशी की हालत में तुमसे बेवफ़ाई करने जा रही हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती थी। आखिरी बार जहांगीर को देखने के लिए वो डॉक्टर से इजाज़त लेकर अंदर आई, तो उसके बेहोश वजूद को देखकर उसे सकते हुए बोली। वो मशीनों के दरमियान बमुश्किल सांस ले पा रहा था। तुम्हारी जान मुझे खुद से भी बढ़कर अजीज़ है। तुम ज़िंदा रहोगे तो मैं खुश हो जाऊँगी कि तुम साँसें तो ले रहे हो। फिर चाहे हमारा मिलन इस दुनिया में ना भी हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसके हाथ पर नरमी से पेशानी टिकाए, वो अपने आँसू उसके सुपुर्द करने लगी। तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा सुकून हो, मेरा इश्क, सब कुछ तुम ही हो जहांगीर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था जैसे हमारी मोहब्बत की कहानी में कोई दुःख आएगा ही नहीं। मगर तुम ठीक कहते हो, मोहब्बत में दर्द ना हो तो वो मोहब्बत कैसी? तुम इसीलिए अपनी हर कहानी में मोहब्बत को दर्द लिखते थे ना? देखो, आज हमारी मोहब्बत भी दर्द की भेंट चढ़ गई। तकलीफ की शिद्दत से आंखें बंद किए वो जहांगीर पर झुकी, रोती रही, तो उसके हाथ में ज़रा सी हरकत हुई। जहांगीर, उसने एकदम सर उठाते जहांगीर को देखा, जिसका सांस अटकने लगा था। उसका सीना ऊपर को उठ रहा था जब ज़ैनब ने घबराकर डॉक्टर को आवाज़ दी। 2 डॉक्टर्स दौड़ते हुए अंदर आए और जहांगीर के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, आप उनसे ज़्यादा बात मत करें। डॉक्टर्स ने उसे तंबीह की तो वो अज़ियत से सिर्फ सर हिला गई। वो क्या बताती कि जहांगीर से जुदाई पर उसकी सांसें भी रुक रही हैं। वो क्या बताती कि उसे भी ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत है, मगर शायद अभी तक इस दुनिया में ऐसा ऑक्सीजन मास्क बना ही नहीं जो मोहब्बत में जुदा होने वालों को सांसें फराहम कर सके। मोहब्बत, इश्क, जुनून, सभी तुम हो, बाकी सब तो समझौता है, जुल्म है, बेबसी है। वो आगे बढ़कर जहांगीर के बालों में नरमी से हाथ फेरते उसकी पेशानी पर झुकी और जिंदगी में पहली बार उसके माथे पर बोसा देते उसने अपने आंसू जहांगीर के चेहरे पर बहाए और फिर एक आखिरी निगाह उस पर डालते बाहर निकल गई कि मोहब्बत की इस दास्तान का इख्तिताम शायद यही था। सुल्तान साहब के हमरा वो उनके घर आ गई थी, जहाँ उनके बीवी बच्चे उसे नफरत की निगाह से देखकर उस पर न जाने क्यों हंस भी रहे थे, मगर अब उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम जहांगीर था। उसके बाद कोई गम गम नहीं लगता था। 2 दिन तक वो कुछ खाए पिए बिना किसी मुर्दे की तरह कमरे में बैठी रही, मगर तीसरे रोज सुल्तान साहब ने उसे बाहर बुलाया तो वो बमुश्किल मुंह धोते बाहर आ गई, जहाँ हम्माद और उसकी वालदा बैठी थी। माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, मगर लगता है कि रात को ठीक से सोई नहीं। हम्माद की वालदा ने उसकी सूजी आंखें देखते उसे अपने पास बैठने का इशारा करते कहा, तो वो खामोशी से उनके साथ आ बैठी। जी, बस बच्चियों का आपको पता है, हर वक्त मोबाइल देखती रहती हैं।
सुल्तान साहब ने कहा तो ज़ैनब ने उन्हें अजनबी निगाहों से देखा। मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि हम्माद ने आपकी बेटी को डराया। जवान खून है इसलिए जज्बाती हो गया, वरना ये बहुत पहले से ज़ैनब को पसंद करता था। उन्होंने कहा तो ज़ैनब तंज़िया मुस्कुरा दी। पसंद? वो इस कमज़र्फ़ मर्द की पसंदीदगी के लिए अपना इश्क छोड़ आई थी। कोई बात नहीं, जवानी में अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर अब बात पक्की हो ही गई है, तो क्यों न मंगनी की अंगूठी पहना दी जाए। शादी 2 दिन बाद रख लेंगे। सुल्तान साहब ने बात आगे बढ़ाई तो उन्होंने खुशी से अपना बैग खोलते उसमें से अंगूठी निकालकर हम्माद को थमाई, जो उसके पास बैठते अब मुस्कुरा रहा था। पहनाओ बेटा, सुल्तान साहब ने कहा तो हम्माद ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर ज़ैनब को अंगूठी पहनानी चाहिए, मगर वो ज़ोर से मुट्ठियाँ भींचे बेआवाज़ रोने लगी थी। उसके आँसू इस कदर शिद्दत से गिर रहे थे कि उसका सर दर्द से फटने लगा, मगर वहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हाथ आगे करो ज़ैनब, अब की बार सुल्तान साहब ने सख्ती से कहा तो ज़ैनब ने ना चाहते हुए भी हाथ आगे किया। उसकी उँगली में अभी तक जहांगीर के नाम की अंगूठी थी। हम्माद के चेहरे पर नागवारी छा गई। उसने ज़ोर से ज़ैनब का हाथ दबोचते उसकी उँगली से जहांगीर की अंगूठी खींचकर फर्श पर उछाल दी। ज़ैनब ने तड़प कर अंगूठी को फर्श पर कहीं गायब होते देखा, मगर हम्माद के नाखूनों की चुभन ने उसे कराहने पर मजबूर कर दिया। आह! आराम से पहनाओ, नाज़ुक बच्ची है, हम्माद की वालिदा ने उसे टोका तो हम्माद मकरूह सा मुस्कुराया और उसने ज़ैनब की उँगली में अंगूठी पहना दी। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो सुल्तान साहब, अब हम बहुत जल्द अपनी बच्ची को ब्याह कर ले जाएँगे। वो अब खुशी से शादी की बात करने लगी थीं, जब ज़ैनब की निगाहें दीवानों की तरह जहांगीर की मोहब्बत की आखिरी निशानी को ढूँढती रहीं, जो फर्श पर न जाने कहाँ गायब हो गई थी। बादलों की गरज के साथ पूरे शहर पर खूब पानी बरसा था। ज़ैनब अपने कमरे की बालकनी से बरसती बारिश को देखती रही। तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या मैंने बारिश की सिसकें महसूस की हैं? तब मैंने तुम्हारी बात मज़ाक में उड़ा दी थी, मगर देखो, आज मैं इस बारिश की आवाज़ में छुपी सिसकें सुन रही हूँ। ये पानी हमारी जुदाई के गम में सिसक रहा है। मेरा दिल चाहता है ज़ोर-ज़ोर से चीखूँ, सबको बताऊँ कि मेरी जान बसती है तुम में। सबको बताऊँ कि तुम्हारे बगैर जीना मेरे बस में नहीं है। मैं रोज़ मर रही हूँ, मगर यहाँ किसी को कोई फ़िक्र नहीं। पता नहीं तुम कैसे होगे, तुम्हें होश आया होगा या नहीं। आज 3 दिन गुज़र गए जहांगीर। क्या तुम्हें अभी तक मेरे जाने का पता चल गया होगा? रोते हुए वो बारिश को देखते जहांगीर के तख़य्युल से मुखातिब थी। जब उसे बालकनी में शोर सा महसूस हुआ, वो नीचे देखने को झुकी तो बाहर जहांगीर को देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो अपनी टांग पर पट्टी बांधे बमुश्किल पाइप के ज़रिए ऊपर चढ़ रहा था। इसी दौरान उसके ज़ख्म से खून भी रिसने लगा था, मगर वो अपने दर्द की परवाह किए बगैर ऊपर चढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो ज़ैनब की बालकनी में पहुँच गया। तुम्हें होश आ गया है? तुम ठीक हो? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ठीक हो। मोहब्बत से उसका भीगा चेहरा थामे वो बेख्तियार रो दी, तो जहांगीर उसका बाजू पकड़े कमरे में आया और कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मुझे कल होश आ गया था, फिर खाला ने सब कुछ बताया तो मैं डॉक्टर्स की मिन्नत करके यहाँ आया हूँ। तुम ठीक हो? वो आँखों में आँसू लिए उसके सामने थक कर नीचे बैठा तो ज़ैनब भी उसके सामने फर्श पर बैठ गई। वो दोनों ही बारिश में भीगे हुए थे, मगर ज़्यादा नम तो उनकी आँखें थीं। ये देखो, उसने मेरे हाथ से तुम्हारी अंगूठी निकाल कर अपनी पहना दी। ज़ैनब ने दर्द से उसके सामने हाथ किया तो जहांगीर ने उसका हाथ थामते कर्ब से उसे देखा। ये क्या हुआ है? ये ज़ख्म? उसने दोबारा तुम्हें मारा है? उसके बाजू पर सुर्ख निशान देखकर वो ठिठका। उसके हाथ और नाखून बहुत सख्त हैं। वो बहुत ज़ोर से हाथ लगाता है। मुझे उससे बचा लो जहांगीर, मैं मर जाऊँगी। अपने सभी वादे भुलाए वो थक कर उसके सीने से लगी तो जहांगीर ने अपने आंसू साफ करते उसकी कमर पर हाथ बांधे। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, वो कराची में हमारे रहने का बंदोबस्त कर रहा है। मैं तुम्हें और खाला को लेकर कल यहाँ से निकल जाऊँगा। कुछ दिन कराची में रहेंगे, निकाह करेंगे, फिर मैं तुम्हारे पेपर्स बनवा लूँगा, तो हम दुबई चले जाएँगे हमेशा के लिए। तुम रोना बंद करो और कुछ देर मुझे सुकून से अपना दीदार करने दो। बहुत दिन दूर रहा हूँ यार। वो उसे खुद से अलग करते तसल्ली देने लगा तो उसकी बात पर ज़ैनब नम आँखों से ही मुस्कुराई। तुम पास होते हो तो सब कुछ ठीक लगने लगता है। मैं सब ठीक कर दूँगा, मेरा वादा है तुमसे। बस अभी हमें यहाँ से निकलना है, मगर मुझ में अभी हिम्मत नहीं है, इसलिए कुछ देर मेरे पास बैठी रहो, फिर चलते हैं। वो दर्द की वजह से वहीं फर्श पर लेटकर ज़ैनब का हाथ थामते उसे देखने लगा। किसी का बाप ऐसा भी हो सकता है जहांगीर? मुझे अपने नसीबों पर रोना आता है, वो उसकी आंखों में देखते पूछ रही थी। तुम्हारा नसीब तो मैं हूँ पागल लड़की, रो मत। ये हमारी ज़िंदगी की आज़माइशें हैं। मेरे माँ-बाप भी तो मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मैं खुश रहता हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो। वो उसे समझाते हुए मोहब्बत से बोला तो ज़ैनब धीरे से मुस्कुरा दी। गर्दन के निशान ठीक हुए? वो फ़िक्रमंदी से बोला। हाँ, वो ठीक हो गए हैं, तुम्हारी तकलीफ के आगे मेरे वो निशान कुछ भी नहीं थे। देखो तुम्हारी पट्टी खून से भर गई है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मगर हम जाएँगे कैसे? उसे नई फ़िक्र लगी। तुम गेट से बाहर आ जाना, मैं यहाँ से वापस नीचे उतर जाऊँगा। बस तुम सबसे छुप कर आना, वरना यहाँ कोई और तमाशा लग जाएगा। जहांगीर ने उसे समझाया तो सर हिला गई। तुम बहुत अच्छे हो, वो अब मुतमईन होकर बोली तो जहांगीर मुस्कुराने लगा। और तुम बहुत हसीन, वो उसी के अंदाज में बोला था।
जब तुम हॉस्पिटल थे तो मैंने तुम्हारे माथे पर प्यार किया था। उसके पेट में कोई बात नहीं ठहरती थी। जहांगीर उसकी बात पर हैरत से उसे देखकर सीधा होकर बैठा। कब? वो पुरजोश था। जब तुम बेहोश थे। वो शर्म से नजरें झुका गई। हा हा हा, यहाँ? जहांगीर ने उसका हाथ थामकर अपनी पेशानी पर रखते पूछा तो वो शर्म के मारे उसे देख तक न सकी। बदतमीजी नहीं करो, वैसे भी अभी हमारी शादी नहीं हुई, इसलिए ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। हॉस्पिटल में तो मैं जज्बाती हो गई थी, इसलिए बस। हद है वैसे, वहाँ कैमरे भी लगे हुए थे। सब क्या सोचते होंगे कि तुम कितनी बेशर्म लड़की हो। अब उसे होश आने लगा था। जहांगीर बेख्तियार हंस दिया। बेशर्म तो तुम हो, लेकिन इसमें छुपाने वाली क्या बात है? वो उसे छेड़ने से बाज ना आया। दफा हो जाओ तुम। मैं ही पागल हूँ जो यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। वो नाराजगी से उठी तो एकदम उसे अपनी बदतमीजी ना करने वाली दुआ याद आई। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो हॉस्पिटल में ये भी दुआ मांगी थी कि अगर जहांगीर बच गया तो मैं कभी भी उससे बदतमीजी नहीं करूंगी और ना ही जिद करूंगी। मैं सारी जिंदगी तुमसे बदतमीजी किए बगैर कैसे रहूंगी यार? उसे नई फिक्र सताई तो जहांगीर का कहकहा कमरे में गूंजा। हा हा हा, हद है ज़ैनब, तुम कितनी पागल हो। जिदें और लड़ाइयाँ करने की इजाज़त मैं तुम्हें देता हूँ और तुम्हारी इन छोटी-छोटी बदतमीज़ियों के बगैर तो मैं रह भी नहीं सकता। उसके नाक खींचते जहांगीर ने उसकी मुश्किल आसान की तो उसने सुख का साँस लिया। शुक्र है, वरना मैं तो डर गई थी। चलो अब चलते हैं, उठो। ज़ैनब को इस कैद खाने से निकलने की बहुत जल्दी थी। जहांगीर भी कुछ देर आराम के बाद उठा और बालकनी के पाइप से लटकते वापस नीचे उतर गया, जबकि ज़ैनब सब घरवालों से आँख बचाते घर से निकल गई। जहांगीर ने कुछ दूर टैक्सी खड़ी की थी। वो दोनों इसमें बैठे और अस्पताल चले गए। ज़रूरी चेकअप के बाद जहांगीर ज़ैनब और उसकी अम्मी को साथ लेकर कराची की फ्लैट में बैठ गया। कुछ घंटों बाद वो कराची पहुंचे तो उसका दोस्त उन्हें एक छोटे से फ्लैट में ले आया और निकाह ख्वाह को बुलाकर जहांगीर और ज़ैनब का निकाह पढ़वा दिया गया। उफ, ये लड़की! रात को जब कामों से फारिग होकर जहांगीर कमरे में आया तो ज़ैनब को बेखबर सोते पाकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रकसा हुई। इतना अरसा रो पीट के अब जब शादी हो गई है तो मोहतरमा को सोने से फुर्सत नहीं। वो कहकर बेड पर उसके करीब आ बैठा। वो सोते हुए बहुत हसीन लगती थी। जहांगीर ने उसके चेहरे पर बिखरे बाल पीछे करने चाहे तो वो नींद से जाग गई। तुम? वो नासमझी से उसे देखने लगी तो जहांगीर मुस्कुराया। जी मैं। और तुम किस खुशी में सो रही थी? देखो जरा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उसने अपनी जेब में हाथ डालते एक छोटा सा सफ़ा निकाला तो ज़ैनब की आंखों में चमक पैदा हुई। क्या है ये? तुम्हारी डेट शीट। बीए के पेपर्स तुम यहाँ की यूनिवर्सिटी में दोगी। बस अब तैयारी शुरू कर दो मैडम। वो शरारत से बोला तो ज़ैनब ने गुस्से से उसे घूरा। तुम शादी की रात ये बकवास डेट शीट दे रहे हो मुझे? मतलब इंसान में थोड़ी शर्म हया होती है कि अपनी दुल्हन को मुंह दिखाए में कोई सेट या अंगूठी दे दे। अगर ये नहीं तो कम से कम गुलाब का फूल ही दे दे। मगर नहीं, तुमने तो मेरा दिल जलाने का ठेका लिया हुआ है। हटो पीछे। वो गुस्से से कहते उठी तो जहांगीर ने हंसते हुए उसका बाजू पकड़कर उसे अपने साथ बिठाया। शोहर पर इतना गुस्सा करने से गुनाह मिलता है। वो उसके कान में सरगोशी करते बोला। और बीवी को मुंह दिखाई में डेट शीट देने पर भी जन्नत नसीब नहीं होती। वो नरूठेपन से बोली तो जहांगीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते उसके बाल माथे से पीछे किए। जन्नत नसीब तो हो गई है मुझे। कितना खुश नसीब हूँ मैं। सोच रहा हूँ कि जहांगीर और ज़ैनब की मोहब्बत पर एक कहानी लिखूं और इसे सारी दुनिया पढ़े कि सच्ची मोहब्बतें अपने आप मनवा ही लेती हैं। हाँ, मगर आजमाइश शर्त है। फरते जज्बात से कहते उसकी आंखें तशक्कुर से भीग गईं तो ज़ैनब ने उसकी आंखों के नीचे हाथ रखते उसके आंसू चुन लिए। सारी दुनिया हमारी कहानी पढ़ेगी मगर सबको मोहब्बत मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं। हमें मिली है तो हमें शुक्र करना चाहिए। ख़ास तौर पर तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि मुझ जैसी समझदार बीवी मिली है। वो बोली तो जहांगीर रोते में हंस दिया। मेरी जान, मेरा सुकून हो तुम। जहांगीर की मोहब्बत, जहांगीर का इश्क। वो उसे अपने हिसार में लेते उसकी पेशानी पर झुका कि वो तो अस्पताल में उस पर मोहब्बत की मोहर लगा चुकी थी मगर जहांगीर पर कर्ज अभी बाकी था जो उसे चुकाना था। ज़ैनब उसकी मोहब्बत पर सरशार होते बाहर चमकते चाँद को देखे गई, जो आज उनकी मोहब्बत की तकमील पर मज़ीद रोशन होकर आसमान पर चमकने लगा था।